हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज जो वीडियो हम देखेंगे उसमें उसको देखने में सचमुच हमें बहुत कष्ट होगा, लेकिन और इस वीडियो का मकसद कोई कम्युनल हेट्रेड फैलाना नहीं है, लेकिन हमारे पास्ट के बारे में, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था वो हमें जानने का पूरा हक है। और ये हमारे ही पूर्वजों की कहानी है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। भारत में क्या हुआ था ये वीडियो उसके बारे में बताता है, और ये वीडियो हम देखेंगे। और बाद में ये वीडियो इज़राइल और पैलेस्टाइन या फिर इज़राइल और गाज़ा के जो फाइट चल रहा है उससे कैसे रिलेटेड है वो भी मैं एंड में आपको बताऊंगा। और ये कहानी मैं नहीं और कोई इंडियन भी नहीं, एक फ्रेंच हिस्टोरियन जिनका एक यूट्यूब चैनल है वो आपको बताएंगे, और वो वीडियो हम देखेंगे। और बाद में फ्रेंच लोगों का क्या रिएक्शन था, कमेंट में फ्रेंच लोगों ने क्या लिखा है वो भी मैं फ्रेंच कमेंट्स जो है वो ट्रांसलेट करके आपको सुनाऊंगा। ये वीडियो कोई आमिर खान या फिर स्वरा भास्कर जैसे लोगों को ट्वीट करके बताए जो इंडिया में इंटॉलरेंस की बात करते हैं, इंडिया में उनको डर लगता है, तो असली इंटॉलरेंस और असली डर क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। L'invasion islamique de l'Inde, le plus grand génocide de l'histoire. L'historien musulman Firishta, de son nom complet Muhammad Kazim Hindu Shah, 1560 à 1620, auteur de Tariq-i Firishta et du Gulshan-i Ibrahim, fut le premier à donner une idée du bain de sang médiéval que subit l'Inde sous le régime islamique. Il estima que des 600 millions d'hindous, plus de 400 millions d'entre eux furent massacrés pendant l'invasion et l'occupation islamique de l'Inde. Les survivants étaient réduits en esclavage et les mâles castrés. Vers le milieu du XVe siècle, ce nombre déclina autour de 170 millions d'individus. Ces chiffres sont terrifiants et feraient de cette invasion islamique le plus grand génocide de tous les temps, la mère de tous les holocaustes. Pour comparer ces données, la découverte de l'Amérique et les massacres contre le peuple indigène d'Amérique seraient de 130 millions, en incluant les nombreuses épidémies. Bien que ce chiffre soit très élevé, il fait pâle figure comparé à ce génocide contre les hindous. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de morts en totalité serait d'environ 60 millions, soit le 6e de ce génocide envers les hindous. Pour l'Inquisition, on estime à 3000 le nombre de peines de mort prononcées durant ces 5 siècles d'existence à travers toute l'Europe. Ce chiffre est tellement démesuré qu'il est à peine concevable dans notre esprit. À l'époque où les Anglais arrivèrent sur les côtes indiennes et après des siècles de lois islamiques, sa population initialement d'origine hindoue était islamisée. Les archives anglaises relatent de nombreux témoignages sur les horribles incidents qui choquèrent les Anglais, qu'ils qualifiaient de sauvages et de barbares. Des témoignages relatent que des villes entières furent rasées et leur population massacrée, des centaines de milliers d'individus soumis à l'esclavage. Durant les campagnes de conquête islamique, plusieurs nouveaux dirigeants musulmans érigeaient des montagnes de crânes d'hindous. Ensuite, des documents historiques islamiques d'époque vantent et glorifient les crimes commis au nom d'Allah et relatent le génocide de dizaines de millions d'hindous, les viols de masse, la destruction de milliers de temples hindouistes et bouddhistes, et tout cela, avec d'innombrables détails, était magnifique et florissant. Ils formaient un peuple prospère. Puis vint l'islam, et s'ensuivirent les massacres, l'esclavage, les viols, la violence, les pillages, la destruction des sites religieux, de l'art, de l'architecture, la pauvreté, l'exploitation, l'humiliation, la famine, les conversions forcées, le déclin de la recherche intellectuelle, les destructions sociales et une dégradation générale des conditions de vie. La conquête de l'Inde par les musulmans fut le moment le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Selon ces historiens musulmans, qui ont enregistré avec la plus grande joie et la plus grande fierté le massacre des hindous, ils parlent le plus souvent d'un nombre incalculable de captifs ou d'esclaves, où ils précisent que toutes les femmes et les enfants furent réduits
en esclavage. Quand les nombres sont comptabilisés, ils sont terrifiants. Outre les esclaves, les musulmans prenaient tout ce qu'ils pouvaient, l'argent, les bijoux, les vêtements, les meubles, les animaux, et ils détruisaient ce qui n'avait aucune valeur à leurs yeux. Ils se comportaient à la manière du faux. तो अभी मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। तो पहला कमेंट है लेविस सनगर्ल्स, थैंक यू फॉर योर डीप हिस्टोरिकल नॉलेज। उसके बाद हेस रूडोल्फ ने लिखा है कि मैं एक फ्रेंच हिंदू हूँ लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ गए। सो मेनी डेथ्स फॉर नो रीज़न। मैं अपने सभी हिंदू भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें एक बहुत अच्छा जीवन मिले और इन सारे क्रिमिनल्स को नर्क से भी बदतर जगह मिले। उसके बाद DDF अलाब ने लिखा है कि वैसे तो मुस्लिम्स हमेशा हर एक प्लेटफॉर्म में हिंदुओं को क्रिटिसाइज करने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी मुस्लिम कमेंटर ने कमेंट नहीं किया है। उसके बाद सैमुअल ने कमेंट किया है कि इन घटनाओं के बारे में बताने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे खबरें वेस्टर्न मीडिया कम्प्लीटली दबा के रखते हैं। उसके बाद कैटरीना प्रोकोविच ने लिखा है कि इंडिया में कई सारे लाइब्रेरीज थे जहाँ पे बहुत एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में कई सारे किताबें थे। यूरोपियंस वहाँ अक्सर जाते थे और बहुत सारे यूरोपियन देशों के साथ भारत का बहुत गहरा नाता था, लेकिन इन सारे लाइब्रेरीज को इन मुस्लिम्स ने तबाह कर दिए। ये बिल्कुल सच है कि दिस अटैक्स बाय मुस्लिम्स वर द मोस्ट जेनोसाइडल एक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद सीलान ली ने लिखा है कि सारे एविडेंसेस को मिटा दिए गए हैं, सिर्फ ऊंची पहाड़ हिंदू कुश कि वहाँ पे आज भी हिंदू मैसेकर के एविडेंसेस मौजूद है। वहाँ पे 8 करोड़ हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया था। उसके बाद लॉरेंट डेलाहाउस म्यूजिक ने लिखा है कि लेकिन हमारे टीवी पे बोलते हैं कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। सीरियसली वो हमें इतने टाइम से झूठ बोलते आए हैं, आई कांट बिलीव इट। उसके बाद बेंजामिन डिसिल्वा ने लिखा है कि रिलीजन ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। हाँ, उसके बाद जुपिटर ने लिखा है कि हमारे हिस्टोरियंस इन घटनाओं के बारे में चुप रहते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुस्लिम रूलर्स ने भारत को इन्वेट किया था। उसके बाद जीन क्लाउडे 974 ने लिखा है कि ये क्रिमिनल्स आज भी नर्क में जल रहे होंगे, मुझे यकीन है। उसके बाद सोआ पैन ने लिखा है कि ब्रावो सर, आपने पूरा सच बताया, मैं आपको 2 करोड़ % सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद N21 ने लिखा है कि रिलीजन ऑफ लव एंड पीस दे से। उसके बाद उन हारिस आक्स ने लिखा है कि अगर ये इस्लामिक इन्वेशन ना होता तो इंडिया आज टॉप मोस्ट सुपर पावर होता। उसके बाद PSG सपोर्टर ने लिखा है कि बहुत लोग नर्क में जी रहे हैं अब। उसके बाद डैरी हेक्सटर ने लिखा है कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस सैड रियलिटी इन फ्रंट ऑफ अस। उसके बाद लॉरेंट डेलाहाउस ने लिखा है, दोबारा कमेंट किया कि और फिर ये हमें शांति और टॉलरेंस के पाठ पढ़ाने आते हैं। सैमुअल पाटी के मर्डर के बाद इनमें से एक ने भी उनके लिए या फिर उनके फैमिली के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं किया। जिनको नहीं पता है, सैमुअल पाटी का मर्डर किया गया था जस्ट बिकॉज उन्होंने मुस्लिम गॉड को लेकर कोई कार्टून बनाया था। उसके बाद हेस रूडोल्फ ने लिखा है कि अब वही चीज़ फ्रांस में हो रहा है, अब ये फ्रांस को इन्वेट कर रहे हैं। उसके बाद हिरियुल याम ने लिखा है कि इट्स गुड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि सच बोलने वाले बहुत कम ही लोग बचे हैं। उसके बाद जिग्नेश पारेख ने लिखा है कि थैंक्स फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो देखकर पता चलता है कि एशिया में मुस्लिम्स कैसे प्रॉस्पर हुए थ्रू रेप, फोर्स एंड डिसेप्शन। आज के इंडियन, अफगान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम्स को ये जानना चाहिए कि उनके पूर्वजों को बाई फोर्स कन्वर्ट किया गया तलवारों के नोक पर, और इनके पूर्वज, औरतें और बच्चे को बेरहमी से मारा गया था। व्हाट अ कैटास्ट्रॉफ। उसके बाद C आउट ऑफ TAF ने लिखा है कि थैंक यू फॉर दिस वीडियो विच ट्रेसेस दिस जेनोसाइड इन इंडिया इज क्लियर एंड प्रिसाइज रिपोर्टिंग, इट्स अ गुड जॉब। आई हैव सब्सक्राइब्ड एंड आई विल शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। आज जो लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि पैलेस्टाइन ने हमें क्या दिया है? इजराइल ने हमें हाईटेक में हेल्प किया है, वॉर में हेल्प किया है, एग्रीकल्चर में हेल्प किया है। तुम लोग ईद के टाइम जो बिरयानी बना रहे हो ना, जो चावल यूज़ कर रहे हो, उसमें भी इजराइल का कहीं ना कहीं हाथ है, उसमें भी इजराइल का हेल्प है। इस वीडियो का मकसद हेट्रेट या फिर दंगा फैलाना तो नहीं है। आई डोंट प्रमोट हेट्रेट एंड वायलेंस अनलेस इट्स रिक्वायर्ड, लेकिन ये ज़रूर है कि हिस्ट्री को हमें रिपीट नहीं होने देना है, और अगर रहना है तो शांति और प्यार से रहो, और जो इंडिया के हेल्प करते हैं उनको सपोर्ट दो। दुनिया में कितने ही मुस्लिम देश है, दुनिया में कितने ही मॉस्क है। इजराइल दुनिया में कितने ज्यूज़ हैं? बहुत कम। जितने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इंडिया में है ना, अगर उतने ही ज्यूज़ होते तो इंडिया एक किसी और ही लेवल पे होता। हिस्ट्री देखो या फिर प्रेजेंट देखो, जहाँ पे भी ये ज्यूज़ गए हैं, सिविलाइजेशन, कल्चर, सब कुछ थ्राइव किया है। टेक्नोलॉजी, कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो ज्यूज़ है। और चाहे इंडिया हो या फिर इजराइल, दोनों ही देश रिलीजन के नाम पे देश के बंटवारा होने के बाद भी मुस्लिम्स को बहुत सुख शांति से अपने देश में रहने दिया है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिस थाली में वो खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो इनको ज़रूर बाहर निकालना चाहिए।